Good morning, everyone. Am I audible to you? Good morning, sir. Good morning. So, in the last class, we have discussed about the transaction manager and transaction coordinator. Okay. So, you have seen that each site has a local transaction manager, and also each site has a transaction coordinator. But you need to know that what is the difference between them, and what are the tasks assigned to each of them. As far the local transaction manager is concerned, it is responsible for maintaining a log for recovery purposes. Okay, so the log management or log maintenance is a part of transaction manager. Then participating in a coordinating the concurrent execution of the transactions executing at that site. So as part from the term itself, transaction manager, its first responsibility will be to have an idea about the different transactions. So maintaining a log for this, and so that in case of recovery, then this log will help for that purpose. And then concurrent execution of the transaction, this should be also taken care of by this transaction manager. Okay. तो ट्रांजेक्शन कोऑर्डिनेटर क्या था? तो transaction coordinator, from the term itself, it will coordinate, it will help in the coordination process. So it starts the execution of transaction that originates at that particular site for which this transaction coordinator is there. And then what it will do, it will distribute the different sub transaction at the appropriate sites for execution. With full diagram, we have discussed about this part. What is sub transaction and how it is being distributed to different sites. Then coordinating the termination of each transaction that originates at that particular site. So that may result in the transaction being committed either also all the sites, or it may be committed or it may be aborted. तो आप सभी को एक चीज अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ट्रांजैक्शन मैनेजर का क्या काम है और ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर का क्या काम है. तो मुझे एक एक पॉइंट बता सकते हो, ट्रांजैक्शन मैनेजर का क्या काम है और ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर का क्या काम है, जल्दी. So you said that transaction manager is maintaining the log of process recovery table process. Yes, sir. Yeah. And in transaction coordinator, it used to distributing the sub transaction executing purpose. Very good. So transaction coordinator is involved in the coordination of different transactions, that transaction that may be originate from that particular site, or to distribute the different sub transaction at different sites, because we are talking about those different sites in a distributed system. So these two are very important. Now, from the diagram, look at this diagram carefully. The diagram, सब लोग देखो क्या समझ में. देखो ये जो टीसी दिखाई दे रहा है आपको, ऑब्वियसली ये टीसी क्या है, आपका ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर. ओके. और जो टीएम है, ट्रांजैक्शन मैनेजर. ठीक है. तो डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, जहां ये कंप्यूटर 1, कंप्यूटर n. ओके. आप इसको एक साइट भी मान सकते हो आप, जैसे पार्टिकुलर साइट ना. इसमें ये एक ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर 1 है और ये ट्रांजैक्शन मैनेजर 1 है. अब ये जितने ट्रांजैक्शंस हैं, इन ट्रांजैक्शन के साथ जो कि मतलब कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है, वो कौन कर रहा है? ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर. ये सब दिखाई दे रहा है ना आपको एरो वाइज. मेरा ये डायग्राम मतलब ये फिगर सबको दिखाई दे रहा है. माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, sir. ओके. तो ये सबको आपको ये दिखाई देगा कि ये जो मैंने सर्कुलराइज कर रहा हूँ, तो ये ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर ये सारे ट्रांजैक्शन का केयर कर रहा है. ठीक है. तो उसके साथ कोऑर्डिनेशन, ये जो आप ये समझ सकते हो, दिस एरो इज काइंड ऑफ मार्किंग टू शो यू द कोऑर्डिनेशन प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? आप जैसे सपोज राजेश ने ये आपका अम्लान के साथ कोऑर्डिनेट किया, मतलब क्या कोऑर्डिनेट किया? कोई एक काम के बारे में, कोई एक पार्टिकुलर मैसेज को कोऑर्डिनेट किया, उस तक पहुंचाया. ठीक है. तो
सिमिलरली ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर का काम है क्या, ये सारे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना। अब आते हैं ट्रांजैक्शन मैनेजर की बात। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि ट्रांजैक्शन मैनेजर जो है वो लॉग मेंटेन करेंगे। लॉग मतलब क्या है, मैं पहले बहुत बार बता चुका हूँ। लॉग में हम सारे इंफॉर्मेशन रखता है हमारे सिस्टम में कौन कौन यूजर्स कब कब लॉग इन कर रहे हैं या डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, ये सारे इंफॉर्मेशन लॉग में रखते हैं, ठीक है। और ये लॉग को, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन मैनेजर है, अपर लेवल में है ये, तो ये मेंटेन करेगा कौन, ट्रांजैक्शन मैनेजर, ठीक है। और ये ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है, ये जो ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर है ये डायरेक्टली लिंक तो किसके साथ है, ट्रांजैक्शन मैनेजर के साथ, क्योंकि ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर बाकी ट्रांजैक्शन को कोऑर्डिनेट कर रहा है और एज ए होल ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर किसके साथ एसोसिएटेड है, आपका ट्रांजैक्शन मैनेजर के साथ। सो आई होप नाउ दिस डायग्राम इज क्लियर टू यू। ओके, Yes, sir. okay, good. Now all of you may be heard of the term system failure. System failure, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सभी जन ने एक बार एटलीस्ट सुना होगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू द सिस्टम फेलियर इज। आप अपने हिसाब से बताओगे मुझे एक एग्जांपल के सिस्टम फेलियर का मतलब आप क्या समझते हो, आइदर इन द केस ऑफ डाटाबेस और कुछ भी चीज एग्जांपल सहित आप बताओगे कि व्हाट डज दिस टर्म सिस्टम फेलियर मीन टू यू, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। आप कोई एक एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, एप्लीकेशन भर रहे हो, लास्ट में क्या था, आपका सबमिट का बटन था, बट एट दैट टाइम आपने सारे फॉर्म जितना भी आपका फिल करना था डाटा वो सारे चीज फिल कर चुके थे आपने, आपने फोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह अपलोड कर लिया था। लास्ट में जो सबमिट बटन था उसमें लगाते ही नीचे मैसेज आ गया सिस्टम क्रैश, ट्राई इट अगेन। तो आपको कैसा लगेगा, हाउ यू विल फील, हाउ यू विल फील? Angry, sir. कोर्स एंग्री, और ऐसा होता भी हुआ भी होगा किसी के साथ, तो एटलीस्ट हुआ ही होगा, मैंने खुद बहुत बार फेस किया है। तो आपने सारे चीज करके इतना समय दिया, उसके बाद फिर से आपको वही चीज बार बार भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिस्टम फेलर जो है इसके बारे में मुझे बताओगे, व्हाट डज इट मीन विथ एन एग्जांपल। नाउ अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिस्टम फेलर मोड्स क्या क्या है, ठीक है। आप यू ऑल नो दैट यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में हम डिफरेंट साइट्स को कंसीडर करते हैं, राइट। तो यहाँ कोई एक साइट फेलर होना मतलब पूरे सिस्टम में, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी अगर हमने सेंट्रलाइज सिस्टम यूज नहीं किया हो। तो आई होप दैट यू कैन रिकॉल दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट नेमिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज स्कीम, याद होगा शायद सबको। उसका बेनिफिट्स, उसका Sir. यस ओके, सो उसका एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस में भी बताया था मैंने। एडवांटेजेस ये था कि बहुत सारे साइट्स है उसमें से कोई एक खराब भी हो गया तो फिर भी हमारा कम्युनिकेशन रुकेगा नहीं, क्योंकि सेंट्रलाइज सर्वर उसका कंट्रोल करेंगे। बट डिसएडवांटेज ये था कि जो सेंट्रलाइज सर्वर है, सपोज इट गोज डाउन देन होल सिस्टम विल बी फेलर, ओके। Now, system failure modes. Failures unique to distributed system is like failure of a site. ठीक है, ये तो समझ में आ गया आपको। Loss of messages handled by network transmission control protocol like TCP/IP. Message अगर loss हो गया तो communication कहाँ से होगा? ठीक है, loss of message is also a system failure mode. Then failure of the communication link handled by network protocols, routing messages via alternative link, मतलब ये जो communication link loss हो गया, एक तो क्या हो सकता है, message loss हो गया, एंड सेकेंड है communication link ही loss हो गया, जहां आप सबमिट कर वो सर्वर तक पहुंचा ही नहीं, उस साइट तक पहुंचा ही नहीं रिक्वेस्ट, that is also a failure. Then network partition. A network is said to be partitioned when it has been split into two or more subsystems that lack any connection between them. That is, a subsystem may consist of a single node. Network partitioning and site failures are generally indistinguishable. मतलब
आप सबको समझ में आ गया कि हमने नेटवर्क को पार्टीशन करके रखा है। ढेर, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था, ये सिस्टम, ये दीज आर द डिफरेंट सब सिस्टम्स। बट जब सेंट्रलाइज सर्वर है, क्या इन लोगों के पास भी आपस में कम्युनिकेशन हो रही है? नो, देयर इज नो sir. individual yes, no individual connection between them. So इसमें कनेक्शन अपने बीच नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्ट क्या कर रहा है, इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये कम्युनिकेशन लिंक जब फेलर हो गए, दिस कम्युनिकेशन लिंक इज लॉस्ट, देन इट विल आल्सो लीड ए सिस्टम फेलर। सो ओवरऑल आपको अगर कोई पूछ दे कि व्हाट विल बी द नेटवर्क means what will be the system failure most in the case of distributed system, then you can tell me that this may be due to either failure of a site, either loss of messages, either failure of a communication link, either network partition is done when there is no communication between those individual sites. And it is very difficult to find out that where these things are happening. Okay, got it? Sir, network partition का खूब बुझा लिया। Okay, network partition means what? See, we have मैं एकदम शुरू से आपको बता रहा हूँ। नेटवर्क मतलब होता है बहुत सारे डिवाइस, जैसे आपका सिस्टम, मेरा सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है। आप ये सारे सिस्टम के बीच सब कम्युनिकेशन हम कराएंगे, तो ऑब्वियसली विल टेक द हेल्प ऑफ सम नेटवर्क, सपोज इंटरनेट वी आर यूजिंग, यस, ओके। नाउ व्हाट हैपन इज दैट when we split this particular system into different subsystems like this, अब क्या होगा, ये दोनों के बीच आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ओके, ये कम्युनिकेशन हो रहा है एज एक सपोज सेंट्रलाइज सर्वर के जरिए। अब प्रॉब्लम ये है, सपोज इसको भूल जाओ आप, forget about this, suppose if it goes down, can there be any communication between these individual sites? क्या इन लोगों के बीच आपस में कम्युनिकेशन हो पाएंगे? इहतर মাজত निजाबबीया कम्युनिकेशन होबो पारिबो? Yes or no? No, कारण आमी because हमने जो किया था, हमने सेंट्रल सर्वर एस्टैब्लिश किया था। मैंने ऐसा नहीं किया था कि रॉबर्ट का, सपोज राजेश का और मेरा सिस्टम को कनेक्ट करके रख दूं, नहीं किया था मैंने ऐसा। मैंने क्या किया था, ओवर द इंटरनेट हम कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई सेंट्रल सर्वर है, उसके थ्रू हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब ये जो सब सिस्टम को हमने, मतलब पूरे सिस्टम को जो सब सिस्टम में डिवाइड किया, अब पूरे सिस्टम मतलब ये समझ मत लेना कि एक सिस्टम को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, यहाँ बहुत अलग अलग साइट है और इनको अपने सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया। मतलब ये है कि ये अभी आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये एक कोई सेंट्रलाइज सर्वर के जरिए कनेक्टेड है। सपोज कंसीडर दैट सिचुएशन, and in that situation there will be lack of communication between each of this individual site. That may also create problem when it goes down. Okay, I hope now it is clear. Etio buzi pala? Yes sir, पालो sir. Yes sir. सर फेलर ऑफ साइट तो सर ऐसे भी हो सकता है, जैसे साइट वन को कम्युनिकेट करना है साइट 2 के साथ और वो साइट डाउन हो रखा है, तो इसलिए शायद से फेलर ऑफ कनेक्ट साइट हो सकता है ना सर वो। देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। देखो साइट ऐसे बहुत 1 2 3, जैसे आप लोग टेबल बना डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस जो है, देखो अलग से आपका कमांड तो एक ही रहेगा। एसक्यूएल आप यहाँ यूज कर रहे हो, चाहे मतलब अलग अलग डिवाइसेस में यूज कर रहे हो। कोई मुझे पूछ सकते हैं कि सर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में हमें तो सेम ही कमांड मिल रहा है। अरे भाई, एक ही तो कमांड होगा ना। एसक्यूएल आप चाहे एक सिस्टम में चलाओ या तो आप 10-12 सिस्टम में चलाओ, कमांड क्या अलग हो जाएगा क्या? क्रिएट टेबल के लिए क्या दूसरा कमांड आ जाएगा आपके पास? नहीं आएगा ना। आर यू एग्री और नॉट? गॉट माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ, सब बुझी पाया? सुबह समझ में आ रहा है ना सबको? हेलो? यस सर, यस सर। तो क्या हो रहा है, देखो कमांड तो मैं बदल नहीं सकता हूँ। टेबल में यहाँ क्रिएट करो या 10 अलग अलग जगह पे क्रिएट करो। आपने जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये लाया है कि आपने एक ही जगह पे सारे डेटा को इंक्लूड नहीं करके आपने क्या किया, डिफरेंट साइट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, राइट? पहले एकदम शुरू की क्लासेस याद करो, ठीक है? हमने क्या किया था, वी हैव कीप्ड आवर डेटा इन डिफरेंट साइट्स। नाउ सपोज ये साइट फेल हो गया, ठीक है?
ये साइट फेल हो गया मतलब क्या होगा, इसमें भी आपने कुछ डाटा रखा, हाँ आपने डाटा डुप्लीकेसी करके उसका कॉपी यहाँ पे भी रखा होगा, यहाँ पे भी रखा होगा, यहाँ पे भी रखा होगा, फिर भी ये जब साइट फेलर हो गया, दिस इज ऑल्सो ए फेलर फॉर अस। क्यों, कोई बता सकते हैं? क्योंकि क्योंकि ये जो पूरा टास्क है, हमने उस टास्क का जो लोड है वो कम करके रखा है जब डिस्ट्रीब्यूट करके रखा था। अब सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल दो, मैं 5 जन का काम 3 जन से करा रहा हूं, तो लोड बढ़ जाएगा कि नहीं? आ रहा है समझ में? यस सर। तो इसी तरह ये जो साइट है ये कोई एक पार्टिकुलर एरिया को कवर किया था, जैसे मैंने मान लिया जोरहाट, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, ठीक है, 3 सर्वर मैंने रखा है सपोज, 3 सर्वर ये पूरा रीजन्स को, सपोज लोअर असम का जो चीज है गुवाहाटी हैंडल कर रहा है, तो मिडिल असम से लेके जोरहाट तक आपका जोरहाट का सर्वर कवर कर रहा है, और सपोज जो डिब्रूगढ़ वाला है पूरा अपार असम इंक्लूडिंग द नॉर्थ असम वो कवर कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर सपोज जोरहाट वाला सर्वर डाउन हो गया तो क्या होगा, ये जो लोड था ये लोड इन दोनों पे ज्यादा बढ़ जाएगा कि नहीं? ये जो लोड है either it will be increased in Guwahati, it will be converted or means changed to the shifted to the Dibrugarh or either Guwahati. Are you all agree or not? समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो लोड बढ़ जाएगा। देखना हमने जब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम पढ़ा था शुरू की क्लासेस को एक बार फिर से देखना, मैंने बोला था कि इसका एडवांटेज क्या क्या है, बेनिफिट्स क्या क्या है। बेनिफिट्स यही है, आप जब ज्यादा ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके रखोगे तो एक्सेस इजीली होगा, और आप डाटा कीप करना, डाटा को स्टोर करना और उससे जो भी मैनिपुलेशन करना है वो आप आसानी से कर पाओगे, ओवरलोड नहीं होगा। ये सारे बेनिफिट्स था हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का। आप जैसे राजेश ने पूछा फेलियर ऑफ ए साइट, फेलियर ऑफ ए साइट मतलब ये एक साइट फेल हो गया, तो इसके ये जो हैंडल कर रहा था रेस्पॉन्सेस वो उसका क्या होगा, उसको आइडर हम कोई और शिफ्ट साइट में शिफ्ट कर देंगे। तो दिस इज आल्सो ए वन ऑफ द यूनिक सिस्टम फेलियर। नाउ गॉट इट राजेश? यस सर। ओके, सो दैट इज इट, दैट इज अबाउट द सिस्टम फेलियर। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं फेलियर ये सब डिस्कस हमने कर लिया है, राइट? Now, commit protocol. If you recall, then आप लोगों को मैंने ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में पढ़ाया था, ठीक है? Commit, revoke. I hope you can means recall them. Commit मतलब क्या था? Yes, sir. Execute करा दिया था, ठीक है? Very good. अगर आप लोग याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो commit protocols are used to ensure atomicity across site. एक टर्म मैंने जो DBMS में बहुत अच्छे से फोकस कर के पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक है? I hope you can recall, that is atomicity. Now what is atomicity? Atomicity क्या था? Atomicity का बोलो। ट्रांजैक्शन कंप्लीट मतलब कमिट ऑल द ट्रांजैक्शन और अबाउट नॉट आधा पार्शियली। अधूरा नहीं होगा। वेरी गुड राजेश। तो आधा अधूरा नहीं होगा मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 70% करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है? आइदर आप उसको कंप्लीटली करोगे या तो करोगे ही नहीं। हम उस चीज को आधा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा 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 100% भर के सबमिट में नहीं गया और सिस्टम फेल हो गया, आप क्या करोगे? आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, आपको फिर से भरना पड़ेगा। आजकल तो गूगल ब्राउजर में आपका वो कैसे के कारण वो सारे चीज आ जाता है, बट फिर भी that is really not bearable, right? So atomicity means what? Either that transaction is going to be completely executed or not. So it is the very important part. I hope you can recall the ACID property we have discussed already in our DBMS class. ACID property. A stands for? Atomicity. Very good. C stands for? Consistency. I stands for? Isolation. D stands Yes, sir. for? Durability. Durability. केटियाओ ना पाओ, ये जो चीज है ना आपको भूलना नहीं। तब भी मैंने बोला था आप लोगों को कि एसिड आपको बार बार जितना भी हायर लेवल में क्यों ना जाओ आप लोग, ये सारे चीज आएंगे, ठीक है? तो कमिट प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टू एंश्योर व्हाट?
एटॉमिसिटी अक्रॉस साइट। ये एमसीक्यू की तरह आपको मिल सकते हैं क्वेश्चन के कॉमिट प्रोटोकॉल्स आर यूज्ड टू एंश्योर, ऐसे डैश देके ऐसे लिखेगा एटॉमिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, आइसोलेशन, तो आंसर होगा atomicity. Okay, a transaction which execute at multiple sites must either be committed at all the sites or aborted at all the sites. ठीक है, मैं कहाँ ध्यान दे रहा हूँ? all में, either committed all the sites or aborted all the sites. ये मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। बुझी पाएगोला सबे? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Very good. Then not acceptable to have a transaction committed at one site but aborted at another. अब देखो, जब DBMS की बारी थी तब मैंने एटॉमिसिटी को ऐसे बताया था कि आइदर पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। आप ये देखो, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा साइट्स है कि नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो ट्रांजैक्शन है कोई एक साइट में कमिट हो रहा है बाकी सब में नहीं हो पा रही है, वो भी फेलर माना जाएगा। ठीक है, देन आपको ये भी याद होगा टू फेज एंड थ्री फेज के। अब टू फेज कमिट प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज्ड, टू फेज कमिट प्रोटोकॉल इज वाइडली यूज्ड। द थ्री फेज कमिट प्रोटोकॉल इज more complicated and more expensive but avoids some drawbacks that we may find in the case of two phase commit protocol. Okay, so three phase commit protocol, although it is very means what I can say, it will have less drawbacks, but still we actually in practical don't use this. We go for which one? Two phase commit protocol. So we will study, I think we'll study this in the next class about the two phase commit protocol. Okay, so before that I would like to give you a last question for today's class that will help me to go through this topic very in a better way. That what do you understand by two phase or 2PL protocol? 2PL, two phase locking protocol. ठीक है, इसको थोड़ा याद करके यही दो क्वेश्चन आज के लिए है, and I'm not going to extend this class today, so I hope it is sufficient for today. Can I stop now? Sir. Okay, sir. Sir. Yes. Sir, it was a non-acceptable to have a transaction committed at one side and aborted at another. Okay, okay. Very good question. So not acceptable means what? I'm talking about atomicity. You see this side, there are many sides are there. So transaction जो है, suppose यहाँ ये दोनों साइड पे एग्जीक्यूट हो पा रहे, मैं नाम दे रहा हूँ 1 2 3 4, but we don't have any idea कि ये जो ट्रांजेक्शन है, इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन साइट 3 एंड सपोज साइट 3 को ही मान के चल रहा हूँ, साइट 3 में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे, तो मैं क्या इस ट्रांजेक्शन को सही मानूंगा? कैन आई एज्यूम दैट दिस ट्रांजेक्शन इज एक्सेप्टेबल? क्योंकि जब ट्रांजेक्शन हम फायर कर रहे हैं तो ये सारे जितने भी साइट्स हैं सभी में जो डाटा आपने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा है, तो इन सभी में एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल टुगेदर हम इसको एक कमिट मान के चल रहे हैं। बट इसमें से जो ट्रांजेक्शन साइट 3 फेल हो गया, तो अल्टीमेटली क्या मैं मान सकता हूँ पूरा के पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हुआ है? नो सर। এটা কাম मैं तुम्हें ভালকে বুঝাইছো आपको, एक जो काम है, एक काम आप क्या हो रहा है, सेम काम सेम डेटा है आपके पास, ठीक है, आपने वो डेटा एक साइट में रखा है, जोरहाट में रखा है, डिब्रूगढ़ में रखा है, गुवाहाटी में रखा है, वो गुवाहाटी और जोरहाट में हो रहा है वही ट्रांजैक्शन, बट डिब्रूगढ़ वाला जो सर्वर है वहां से नहीं हो पा रहा है, तो क्या मतलब उस ट्रांजैक्शन का जो एक साइट में एग्जीक्यूट कर पा रहे हो और दो साइट में एग्जीक्यूट कर पा रहे हो, बट जो लास्ट साइट है उसमें एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कुछ फॉल्ट तो होगा, आइदर देयर शुड बी फॉल्ट इन दैट ट्रांजैक्शन। तो ऐसा ट्रांजैक्शन जो सारे साइट्स में एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो उसको हम मानेंगे क्या? फेलियर और नॉट एक्सेप्टेबल। सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को हम मानेंगे सही है जो सभी साइट में एग्जीक्यूट हो पाए, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इसीलिए तो बना रहे हैं ना,
सभी में सारे जितने भी साइट्स है सभी में एग्जीक्यूट होना चाहिए। कोई भी साइट भी छोड़ के मतलब बाकी में हो रहा है तब भी हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिस इज द मेन रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। ओके, नाउ गॉट इट? Yes, sir. Very good. So with this I'm ending today's lecture. Thank you.